This lecture is regarding the solving Schrodinger wave equation. We have discussed the Schrodinger wave equation, the particular wave equation that describes the motion of electron inside the nucleus. It is a three-dimensional motion that is a double differential of the wave function with respect to the x, y and z, and includes the mass as well as energy terms related to the electron. This type of equation, it is present in the Cartesian coordinates. What is meant by the Cartesian coordinates? ये जो x, y, z आप पढ़ते हैं यूजुअली थ्री डायमेंशनल एक्सिस, तो किसी पॉइंट के जो वो तीन डायमेंशन x, y, z, एक एक्स एक्सिस बाई तरफ और तीसरा जेड एक्सिस की तरफ, जो वो आप उसको डिस्क्राइब करके जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट के वर्टिसेस जो वो लिखते हैं, तो उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. वी कांट डिस्कस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बिकॉज द सिमेट्री ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन्स एटम, दैट इज ए स्फीयर. और स्फीयर के लिए जो वो एक्स वाई जेड की बजाय जो है वो बेहतर होगा कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स हों दैट गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि अगर स्फीयर में जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन वहां से कितने डिस्टेंस पे है, तो एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो डायरेक्ट उसकी वैल्यू दे, मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. और वो किस एंगल पे है, कहां है, अप साइड है, डाउन साइड है, इट मस्ट इंक्लूड्स द एंगल्स. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ना तो हमारे पास एंगल्स हैं, ना डायरेक्ट कोई ऐसा वे है कि जिससे हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है या डिस्टेंस बता सकें, पोजीशन बता सकें कि इलेक्ट्रॉन से या न्यूक्लियस से जो वो कितना डिस्टेंस पे है. तो इसीलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में. Now, what are the spherical polar coordinates? Spherical polar coordinates are of the three types. One is r, another is theta, another is the phi. तो यहां पर एक डायग्राम है जो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा कि कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो सी हियर, दैट इज ए पॉइंट P हियर. दिस पॉइंट P इज हैविंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y and z. Now, what is the distance from this origin of this point? That is termed as the r. That is taken as distance of the electron from the nucleus. तो यहां पर r जो वैल्यू है, that is the direct distance of the point from the nucleus. It is the shortest distance. Then, what is the angle phi? Phi angle को जेनिथ एंगल बोलते हैं. ये लाइन जो है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम फाई, और दैट इज द जेनिथ एंगल. ये लाइन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को लिंक कर रही है, इसकी प्रोजेक्शन मीन छाया कहां पड़ रही है, एक्स वाई प्लेन में पड़ रही है. ये प्रोजेक्शन जो है इसकी, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल. तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा और फाई जो है, दैट आर द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. Whereby these three relations are there, they correlate these coordinates with each other. X is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos theta. So, if we substitute for x, y and z these values, then we get this equation that is given down here. It is 1 by r square, it is curly upon curly r, it is r square curly psi upon curly r, plus 1 by r square sin theta curly by curly theta, it is sin theta curly psi upon curly theta, plus 1 by r square sin square theta, it is curly square psi upon curly phi square, and it is plus 8 pi square m upon s square e minus b into psi is equal to 0. So that equation is in the spherical polar coordinates. How to convert it? It is again a mathematical problem. So don't deal with it, especially medical students. Non-medical students, and they can have the joy by playing with these mathematical problems. What
you will not be asked in the examination to convert it from Cartesian coordinates into the spherical polar coordinates. Only the way for you to remember this equation. Reason, the examiner can directly ask, write the Schrodinger wave equation in the spherical polar coordinates. It may be a 1 or 1.5 number question in the examination. Remaining portion he will not ask from you what is r, what is theta and what is the phi. What he will ask, what is the form of Schrodinger wave equation in the spherical polar coordinates. तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है. Now let us see the next radial and angular part. So here again you will not be asked to solve the equation again, क्योंकि जो Schrodinger wave equation है that can be solved with the help of only computer algorithms and you can't solve manually it. तो इसके लिए जो है वो आपने इसको सॉल्व नहीं करना है. इसके बाद सीधा लिखना है आपने psi r theta phi, psi which is dependent upon the r theta and phi, it is equal to r, it is capital theta and theta, capital phi and phi, means it can be splitted. This is a result directly. psi की वैल्यू आ रही है ये, क्योंकि जो पीछे हमने डिस्कस किया that was what, that was the Schrodinger wave equation in the spherical polar coordinates. When you will solve it, you will get the wave function value. These wave function value you are getting because you have imposed some condition. Psi should be finite, psi should be continuous, it should be single value at the same point. By imposing these conditions, whatever psi values you get, you name them as the eigen functions. Substitute these values in the Schrodinger wave equation. Whatever the energy value we will get, those are termed as the eigen value. So this is the result of the Schrodinger wave equation, psi r theta phi, that is equal to r theta theta phi phi. It contains two parts. One part is the radial part, another part is the angular part. तो इसको मैंने सेपरेशन कर दिया. इस लाइन के परली साइड जो है दैट इज द रेडियल पार्ट, ये रेडियस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है, एंड दैट पार्ट इज द एंगुलर पार्ट. तो इस साइड वाला पार्ट जो उसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर पार्ट. So the wave function, it is having two parts. One is the radial part, another is the angular part. So better way to write it as psi r theta phi, it is equal to r n l r. अब इसमें दो टर्म्स मैंने और ज्यादा इंक्लूड कर दी और सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखी हुई हैं. It is saying that radial part, it is depending upon the quantum numbers n and l. Principal and the azimuthal quantum numbers are two, on which the radial part it is dependent. The angular part, it is depending upon the L and M, where L is the azimuthal quantum number and M is the magnetic quantum number, whereby the phi angle or the zenith angle, it is only depending upon the M value, means magnetic quantum number के ऊपर जो वो ये डिपेंड कर रहा है. तो यहां डिपेंडेंसी भी शो कर की हुई है, लेकिन एक जर्नलाइज्ड रिलेशन जो है उसने दिया है. ये कोई एक्चुअल इसका सोल्यूशन नहीं है साई आर थीटा फाई की कि यही वैल्यू आती है. ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू आएंगी उस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब अगर रेडियल पार्ट की डिस्कशन करनी है तो ये रेडियल पार्ट जो वो यहां डिस्क्राइब किया है, 1s के लिए आपके पास ये वैल्यू आती है. इट इज r दैट इज z अपॉन a0 रेज टू पावर 3/2 e माइनस zr अपॉन a0. A0 is the Bohr radius एंड 1s के लिए जो है ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल पार्ट की वैल्यू ये आ रही है. इसी तरह से आपके पास 2s के लिए वैल्यू आएगी. तो ये वैल्यू जो वो याद करने के लिए नहीं है कि आपने एग्जाम में इनको याद करके जाना है. एग्जामिनर विल नॉट आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ radial part for the 1s or what is the value of radial part for the 2s. रीजन बीइंग इंटरमिक्सिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसमें याद करना कहां z अपॉन a0 है, कहां z अपॉन 2a0 है, या कहां पर 2 माइनस zr अपॉन a0 आ रहा है. तो ये याद जो वो नहीं किया जा सकता है. लेकिन एग्जामिनर आपको जो है वो उसका प्लॉट के बारे में पूछ सकता है, ग्राफ के बारे में पूछ सकता है. वो किस तरह का ग्राफ होगा वो आगे डिस्कस करूंगा मैं यहां पर.
इसी तरह से लिए 2p के लिए जो वैल्यू आपके पास आ रही है. See here is a graph that is plotted in between what? That is the total radial part, अभी जो हमने डिस्कस किए, with the RPM. It is the radius of the atom and it is in the picometer, that is why it is written R and then it is PM. तो 1s के लिए प्लॉट करते हो तो इस तरह की लाइन जो 1s के लिए प्लॉट करने पे आती है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल डिके. तो अगर आप पीछे थोड़ा वापस मूव करो, इट इज RR, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म हियर. Z जो है वो कांस्टेंट है, A0 जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट, एंड दैट इज द एक्सपोनेंशियल एंड विद द नेगेटिव साइन. दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग हियर अ लाइन विच इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली. तो एक्सपोनेंशियली जो है वो डिके करेगी. ये जीरो वैल्यू को वैसे नहीं अप्रोच करती, यहां मैंने शो कर रखा है, लेकिन इस तरह से जो वो एक्सपोनेंशियली ये क्या करेगी, डिके करेगी. सो दैट इज द प्लॉट ऑफ द रेडियल पार्ट फॉर द 1s एंड दैट इज द प्लॉट ऑफ द रेडियल पार्ट फॉर द 2s. तो 2s के लिए जो प्लॉट है साइड में, ये शायद आपको नजर आ रहा है यहां पर, दैट इज फॉर द 2s. तो 2s के लिए ये इस तरह का प्लॉट आ रहा है. अब इसमें देखो ये ग्राफ जो एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ डिके तो किया है, लेकिन इसकी स्लोप जो बहुत शार्पर हो गई है. पहले स्लोप जो फ्लैटर थी, उसके बाद क्या हो गई, अब शार्पर हो गई. देन इट इज चेंजिंग इनटू नेगेटिव साइड. व्हाई इट इज गोइंग टू द नेगेटिव साइड? सो यू कैन सी हियर इट इज 2 माइनस ZR अपॉन A0, दैट इज द फैक्टर इन द 2s. अगर इसकी वैल्यू 2 से लेस होगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. अगर यहां पर आप 3 पुट कर दो ZR अपॉन A0, तो 2 माइनस 3 इज -1. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज द नेगेटिव. यू विल ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज 0 when ZR अपॉन A0 इज 2. 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यही आपके पास यहां आ रहा है. अगर आप इसको ढंग से चेक करो तो यहां पर वैल्यू पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे आगे वैल्यू 0 होगी, उसके बाद वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो ये इसके साथ ही 2p का प्लॉट भी मैंने जो है वो रेडियल पार्ट प्लॉट किया हुआ है मैंने. तो इस तरह से रेडियल पार्ट को आप प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा. रीजन बीइंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द व्हाट इज द वेव फंक्शन, बट वी आर इंटरेस्टेड what is the probability of finding the electron inside the nucleus. तो probability क्या चीज होती है, square of the wave functions. It means R radial part simply it is not of our concern. What is the square of the radial part? wave function का हिस्सा नहीं है, तो square जो है वो इसका important है. तो square अगर प्लॉट करें आप radial part का, so that is the plot of the radial part for 1s. It is R square R. I have multiplied with the B, that is the volume. मैंने कहा था आपको कि प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है. और कौन सी डेंसिटी होती है, वॉल्यूम डेंसिटी. तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी. सो दैट इज R स्क्वायर इंटू V. इट इज द नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. अगर आप स्क्वायर इसका प्लॉट करते हो तो इस तरह का प्लॉट आपके पास आता है. नो व्हाट दिस प्लॉट इंडिकेट्स व्हेन R इज इक्वल टू 0. यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं. R इक्वल टू 0 मीन्स इलेक्ट्रॉन बी आर ओवर द न्यूक्लियस. तो वहां पर जो है वो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगी. सो द वेव फंक्शन जो स्क्वायर है ये ग्राफ जो है कहां टच कर रहा है, ओरिजिन के पास ही है. इसका मतलब वी कांट फाइंड इलेक्ट्रॉन ओवर द न्यूक्लियस, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं हो सकता है. बट एज वी विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो यहां सेंटर पे जाके जो है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई. तो इससे आगे मैंने ब्लैकिश पोर्शन शो किया है, हियर देयर इज ए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. उसके बाद अगर R की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होती है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज डिक्रीजिंग अगेन, इट इज डिक्रीजिंग टू द 0. इसका मतलब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, उसके आगे थोड़ा सा जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट इज द प्लॉट फॉर द 1s. इसी तरह से प्लॉट अगर आप 2s के लिए चेक करें, व्हेन यू प्लॉट फॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर द 2s, इट इज R स्क्वायर R इंटू B एंड दैट इज विद द रेडियस
it is the distance from the nucleus. You see here, in this structure, we are having a small hump here, then again a bigger hump here. It says कि स्टार्टिंग में न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, फिर थोड़े टाइम के लिए वो इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी जीरो के लिए. तो देखो यहां पर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, थोड़ी देर के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, अगेन वी आर हैविंग ए क्लोजर पाथ वेयर देर इज ए नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई ब्लैकिश पार्ट नजर नहीं आ रहा है. तो इस पार्ट को हम बोलते हैं नोडल प्लेन. क्या बोलते हैं हम इसको? नोडल प्लेन. आफ्टर दैट अगेन देर इज ए इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो उसके बाद फिर जो है वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई एंड अगेन दैट विल फॉल टू जीरो. तो 2s में जो वो एक नोडल प्लेन होता है और यहां पर सिंगल नोडल पॉइंट आ रहा है. क्या आ रहा है हमारे पास? सिंगल नोडल पॉइंट. हियर वी आर हैविंग द नोडल प्लेन. तो इस तरह से जो वो 2s का जो है वो ग्राफ आता है. तो एग्जामिनर आपसे जो है वो इन ग्राफ्स के प्लॉट के बारे में जरूर पूछेगा. नाउ हाउ टू रिमेंबर देम एंड हाउ टू ड्रा देम. ये प्लॉट्स फिलहाल एक ही तरह के होंगे, इसमें इसी तरह के चेंज आएंगे. किस तरह के? जो 1s है उसके लिए इस तरह का ग्राफ था, लेकिन 2s में इस तरह का हम्प हो गया. अब 1s का ग्राफ जिस तरह का है इसी तरह का ग्राफ जो है वो किसका आता है? 2p का आता है. सो दैट इज द ग्राफ फॉर द 2p. 3p का ग्राफ जो है वो इस तरह का आ रहा है और ये ग्राफ किसके साथ मैच कर रहा है? 2s के साथ. कहां है 2s का ग्राफ? ये रहा 2s का नीचे. ठीक है. और ये नेक्स्ट में आपके पास क्या आ गया? 3p का आ गया. अब क्या चीज कॉमन है इनमें? अगर आप 2p का ग्राफ देखें, ये रहा 2p के लिए ग्राफ, और इसी तरह से आप अगर 1s का ग्राफ देखें तो इसी तरह से किसका ग्राफ था? 1s का. तो s जो है वो 1 से शुरू होता है और p जो है वो 2 से स्टार्ट होता है. तो हर एक स्टार्टिंग ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से आएगा. क्या कहा मैंने? हर एक स्टार्टिंग ऑर्बिटल जो है उसका ग्राफ जो है वो इसी तरह से आएगा. मींस s 1 से स्टार्ट होता है तो 1s, p 2 से शुरू होता है तो 2p, d 3 से शुरू होता है तो 3d, f 4 से शुरू होता है तो 4f. इन सबका प्रोबेबिलिटी ग्राफ एक ही तरह का आएगा. 1s, 2p, 3d एंड 4f. उसके बाद अगर हम बात करें 2s की, दैट इज द 2s सेकेंड ऑर्बिटल, तो इसके बाद बात करें अगर हम 3p, तो दैट इज द 3p. तो इसका 3p और 4d, इन सबका ग्राफ जो है वो एक ही तरह का होगा. 4d भी और 3p भी. तो ये सेकेंड ऑर्बिटल है. 2s इज द सेकेंड ऑर्बिटल, 3p p में सेकेंड ऑर्बिटल आ गया, 4d d में सेकेंड ऑर्बिटल आ गया. इसी तरह का ग्राफ किसका होगा? 5f का. 4f जो 1s के साथ मैच करेगा, लेकिन 5f सेकेंड ऑर्बिटल है, दैट विल मैच विद द 4d एंड द 3p, और इट विल मैच विद द 2s. तो हर एक का स्टार्टिंग ऑर्बिटल का ग्राफ एक तरह का होगा. उसके बाद सेकेंड ऑर्बिटल का ग्राफ हर एक का एक तरह का होगा. थर्ड ऑर्बिटल का ग्राफ जो हर एक ऑर्बिटल का एक ही तरह का होगा. तो ये जो है वो याद करने के लिए बहुत सिंपल पॉइंट है. हर एक के फर्स्ट ऑर्बिटल में कोई नोडल पॉइंट नहीं होता है, या उसकी स्ट्रक्चर में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है. हर एक के सेकेंड ऑर्बिटल में एक नोडल पॉइंट होगा और स्ट्रक्चर में उसकी में एक नोडल प्लेन आएगा. क्या आएगा? एक नोडल प्लेन आएगा. देन नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. एस ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं पीछे ड्रॉ किए थे मैंने. यहां पर p ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं थोड़े से. तो 2p ऑर्बिटल आपको मालूम है जो डबल डंबल शेप होता है, तो ये डंबल की तरह नजर आता है. एक लॉब इस तरफ है, दूसरी लॉब इस तरफ है. लेकिन 3p शायद आपने पहले नहीं डिस्कस किया है, देखा है. तो ये रहा जो 3p ऑर्बिटल है, इसमें जो है ये पॉइंट जो है ये नोडल पॉइंट्स हैं. हियर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0. सो दैट इज द 3px. नीचे जो स्ट्रक्चर है वो किसको शो कर रही है? 3py को शो कर रही है. यहां कलर डिस्टिंक्शन शो की है, उसका कोई खास लेना देना नहीं है इसके साथ. इतना ही है कि ये जो वो जैसे पहले में एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको ग्रीन शो किया है,
दूसरे में भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसको ग्रीन शो किया है, तीसरे में जो पॉजिटिव बाई वाला साइड जो है उसको मैंने क्या किया है, ग्रीन शो किया है। दैट इज ओनली फॉर द डिस्टिंक्शन कि कौन सा जो है पॉजिटिव एक्स की तरफ है, कौन सा नेगेटिव एक्स की तरफ है। मेन इज द शेप ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है। 3D ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। वन इज 3ZX। अब ये 3DZX, अगर एक्स वाई और जेड के ऑर्बिटल अगर आप इसमें 3 के लिखने चाहें डी के, तो DXY, DYZ, DZX दो का कॉम्बिनेशन बनाना है। XY, YZ एंड ZX, ये 3 ऑर्बिटल होंगे डी में। तो ये पहला रहा 3DZX। इसको कैसे ड्रा करना है, ये 90 डिग्री के एंगल पे एक्स और जेड एक्सिस, बिल्कुल एक ऑर्बिटल आपने 45 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करना है। सो दैट इज द लाइन विच इज हैविंग 45 डिग्री एंगल। तो एक आ गया आपके पास इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच एक्स और जेड के। दूसरा लॉब इसके बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी तरह से DYZ, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होगा। यहां से इंडिकेट कर रहा है ये कि किसमें बीच में होना चाहिए, वाई और जेड एक्सिस के बीच में। सो दैट इज वाई एंड जेड। तो एक लॉब वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, दूसरा लॉब एग्जैक्टली इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी तरह से DXY, सो सी हियर, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसके बीचों बीच जो है 45 डिग्री के एंगल पे जो है 45 टू द वाई एक्सिस, 45 टू द एक्स एक्सिस, एक लोब आ गया। और दूसरा लोब जो है एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 3DZ²। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जेड एक्सिस के अलोंग 2 लोब आएंगे, दीज आर द 2 लोब्स, और एक सर्कल आता है, दैट सर्कल इज इन द XY प्लेन। दिस सर्कल इज इन द XY प्लेन। और एक ऑर्बिटल आता है 3DX² - Y²। इसमें एक लॉब एक्स एक्सिस की तरफ होगा, दूसरा लॉब वाई एक्सिस की तरफ होगा। थोड़ा सा डिटेल में फिर इसको डिस्कस करेंगे।